علیہ وسلم تسلیما صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اللہ کو ماننے والوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت محبت رکھنے والوں، یہ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور عجب انداز سے محبوب رب نے جلوہ فرمایا، عجب انداز سے محبوب رب نے جلوہ فرمایا، سرور آنکھوں میں آیا چین دل میں نور ایمان میں، سرور آنکھوں میں آیا چین دل میں نور ایمان میں، اور اگر طوفان میں کشتی ہو تو ہے انجام طوفان کا، اگر طوفان میں کشتی ہو تو ہے انجام طوفان کا، اگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا انجام طوفان ہے، اگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا انجام طوفان کا، اور مکانوں لا مکا ان کا زمین ان کی فلک ان کا، مکانوں لا مکا ان کا زمین ان کی فلک ان کا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ قرآن پاک کی آیت جب پڑھو نا تو سنیوں کا جو عقیدہ ہے، جو اہل سنت عقیدے والے ہیں نا، جب یہ آیت جب سنتے ہیں نا قرآن پاک کی آیت تو مچل جاتے ہیں، اور مچلے تو کیوں نہ مچلے، کہتے ہیں پھول کی بات چلے اور پھر بلبل ثبوت مانگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں حضرت؟ پھول کی بات چلے بلبل ثبوت مانگے، شمع کی بات چلے اور پروانہ ثبوت مانگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ اے مومنو، تم نہیں بھیجا کرو۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے نماز پڑھتے ہیں، تم نہیں پڑھا کرو، کہیں کہا قرآن پاک کے اندر؟ حضرت میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن عالم دین کی صحبت میں ضرور بیٹھتا ہوں، اور قرآن پاک جس کو حافظ کہتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و احسان سے حافظ تو ضرور ہوں، لیکن کہیں پر آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، کیونکہ نماز جو پڑھی جاتی ہے نا بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کسی کا بندہ نہیں ہے، اللہ کسی کا بندہ نہیں ہے، وہ کس کے لیے نماز پڑھے گا؟ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھا کرو، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا میں زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دیا کرو، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی، جب باری آئی اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی، جب باری آئی آمنہ کے لال پر درود پڑھنے کی، تو صرف خود کو نہیں بتا رہا ہے، فرشتوں کو نہیں بتا رہا ہے، بلکہ تمام ملائکہ کو، تمام قدسیوں کو، تمام حور غلمہ کو، سب کو اکٹھا کر کے اللہ پر بتا رہا ہے کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے غیب بتانے والے نبی پر، اور تم بھی پڑھا کرو، درود و سلام تم بھی پڑھا کرو۔ اچھا، کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، کہتا ہے درود پڑھنے کو بتایا گیا، یہاں کھڑے ہونے کا کہاں بتایا گیا؟ سلام پڑھنے کو بتایا گیا، کھڑے ہونے کو کہاں بتایا گیا؟ ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں،
अच्छा कहो तो इस पर एक वाकया बता दूं आका के जमाने का, और जब इसका जवाब सुनना तो कोई खामोश नहीं रहना, अपनी अपनी कुर्सियों को छोड़ देना, अपनी अपनी कुर्सियों को छोड़ देना। अभी मैंने बताया ना कि अगर फूल की बात चले और बुलबुल सबूत मांगे ऐसा हो ही नहीं सकता, बुलबुल सबूत मांगे ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी रहा करते थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। एक दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इजाजत फरमाइए निकाह कर लो। आका ने इरशाद फरमाया बालिग हो गए हो निकाह कर लो। अल्लाह अल्लाह सहाबी रसूल पहुंचे, पहुंचने के बाद में आपने निकाह फरमा लिया। कई अरसे गुजर गए, कई साल गुजर गए, लेकिन आपकी कोई औलाद नहीं पैदा हुई, कोई औलाद नहीं पैदा हुई। एक दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे, नबी की महफिल बैठे हुए थे, अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कोई औलाद नहीं पैदा हुई है, दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को दराज किया, हाथों को दराज करके इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह अपने महबूब के सबके नई से औलाद वाला बना दे, अपने महबूब के सबके नई से औलाद वाला बना दे। 9 महीने के बाद एक औलाद पैदा हुई, लेकिन औलाद पैदा हुई, सहाबी बहुत गोरे थे, उनकी बीवी बहुत हसीन और जमील थी, लेकिन बच्चा पैदा हुआ काला काला, बच्चा पैदा हुआ आपशियों की तरीके से, उसकी शक्ल कोई देखता था तो देख करके देखना गवारा नहीं करता था। अल्लाह अल्लाह बच्चा जब रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे बड़ा हो गया तो गाँव की औरतों के, मोहल्ले की औरतों के अंदर ये फितनाबाजी पाई जाती है, ये बात पाई जाती है, ये बहुत बड़ी गलतियां पाई जाती है, ये गुनाह हर औरतों के अंदर जहाँ तक देखा जाए 95% औरतों के अंदर ये गुनाह राइज हो चुका है कि वो दूसरों की घर की बुराइयां क्या करती हैं, वो बुराइयों में औरतें गिरफ्तार हो गई, अरब की औरतें भी गिरफ्तार हुई। उन्होंने कहा लग रहा है औरत गोरी है, सहाबी गोरे हैं, औरत गोरी है, आदमी गोरा है और बच्चा जो है काला काला है, ऐसा लग रहा है नाजायज औलाद है। अल्लाह अल्लाह साहब रसूल कई दिन तक सुनते रहे, लेकिन आका की बात उस जमाने के सिर्फ मोमिनीन नहीं मानते थे, सहाबी नहीं मानते थे, बल्कि काफिर भी माना करते थे। अल्लाह के हबीब की बारगाह में 3 साल के बच्चे की कलाई पकड़ी, अपनी औरत को लिया, अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहुंच गए और पहुंचने के बाद में खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम लोग मेरे बच्चे को हरामी कहते हैं, मेरे बच्चे को नाजायज कहते हैं, नाजायज की औलाद कहते हैं, हुजूर आज आप फरमा दीजिए, आप जो फरमा देंगे वही होगा। अल्लाह 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 के हबीब की बारगाह में पहुंचे हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया सहाबी बैठ जाओ, सहाबी बैठ गए, उनकी बीवी भी बैठ गई, बच्चा भी बैठ गया। इतने में आका नामदार का शहजादा, जिसे मेरे आका ने इरशाद फरमाया जन्नती जवानों का सरदार है, जिसे मेरे आका कभी गला चूमा करते थे, कभी पेशानी चूमा करते थे, नानी इमाम हुसैन 5 साल की उम्र है, मदीने में खेल रहे थे, खेलते खेलते आए आका की बारगाह में जब पहुंचे तो साहबा ने देखा सबके सब खड़े हो गए, साहबा ने देखा सबके सब खड़े हो गए। आका की बारगाह में हुसैन आए, नाना की गोद में खेला, खेलने के बाद जाने लगे, फिर सारे के सारे साहबा खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए और उन्होंने हुसैन तशरीफ ले गए, आका की नशिस्त खत्म हुई, महफिल खत्म हुई, तमाम साहबा घर जाने लगे। आका की बारगाह में पहुंचे साहबी, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सवाल का जवाब नहीं दिया, महफिल खत्म हो गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया साहबी तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है, इजाजत हो तो सवाल का जवाब बता दूं। इजाजत है, कितने लोगों की इजाजत है? इजाजत है अपनी अपनी कुर्सियों को छोड़ देना, क्योंकि इसके अंदर हलाली और हरामी की बात आ गई है। कुर्सियों को छोड़ देना। आका की बारगाह में सहाबी पहुंचे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम नशिस्त खत्म, महफिल खत्म, सहाबी घर जा रहे हैं, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सहाबी सवाल का जवाब मिल गया। कहा हुजूर समझा नहीं? कहा जब अभी मेरा शहजादा हुसैन आया था खड़े हुए थे तुम। कहा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तमाम सहाबी खड़े हुए थे। कहा तुम खड़े हुए थे? कहा तुम्हारी बीवी कहा? कहा तुम्हारा 3 साल का बच्चा? कहा हुजूर वो भी खड़ा हुआ। मेरे आका इरशाद फरमाते जवाब सुनना और खड़े हो जाना, अपनी अपनी कुर्सियों को छोड़ देना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसकी रगों के अंदर, जिसके जिस्म के अंदर ओरिजिनल खून होगा वही मेरे हुसैन की आमद पर खड़ा होगा। और जो
लेना, जो कहे कोई कि हम नहीं खड़े होंगे तो समझ लेना, समझ लेना, समझ लेना, ये कोई और नहीं, उसी की नस्ल से है, वही नस्ल से है। और जब आका की शान में जब तुम जिक्र करो और कोई सबूत मांगे, कोई जब सबूत मांगे तो वो भी अपने बाप की ओरिजिनल खून से नहीं पैदा, ओरिजिनल खून से नहीं पैदा है। एक शख्स था, अल्लाह तबारक तआला ने उसका जिक्र कुरान पाक के अंदर फरमाया, उसका जिक्र कुरान पाक के अंदर आया, वलीद इब्ने मुगीरा। वलीद इब्ने मुगीरा एक दिन मेरे आका मदीने की गलियों से निकल रहे थे, तशरीफ ले जा रहे थे। आप लोगों की तवज्जो बनी हो तो बोलूं, वरना कोई बात नहीं है। तवज्जो है, आप बोलो, देख लेना। जब कोई नबी को बुरा भला कहे तो समझ लेना इसकी माँ ने कहीं ना कहीं गलती की है, इसकी माँ ने कहीं ना कहीं नैन भिड़ाए हैं, तभी ये नबी को आज गाली दे रहा है। इसकी माँ के कई यार थे, तभी ये गाली दे रहा है। शर्म की बात नहीं है, आज मैं शर्म नहीं करूंगा, क्योंकि नबी के जिक्र की बात आ गई है, नबी की इज्जत की बात आ गई है, नबी के नामोज की बात आ गई है। आज आपको इनकी हकीकत बता के रहूंगा। जब कोई नबी की जात पर उंगली उठाए और बताए ये करना कहाँ लिखा हुआ है, ये करना कहाँ लिखा हुआ है, ये मनाना कहाँ लिखा हुआ है, ये मनाना कहाँ लिखा हुआ है, तो समझ लेना उन्हीं में से है। किस तरीके से मेरे आका मदीने की गलियों से निकले, और जब गलियों से जा रहे थे तो एक शख्स था जो काफिर था, अपने वक्त का बहुत बड़ा कुफ्फार था। उसने कहा, ओ जब मैं मोहम्मद की शक्ल देखता हूँ तो अच्छी नहीं लगती है, माज़अल्लाह मोहम्मद मजनू की तरीके से है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने ये कहा, मेरे आका ने सब्र किया, मेरे आका तशरीफ ले गए, मस्जिद नबवी के अंदर गए। मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचने के बाद आपने नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद में रात हो गई। रात होने के बाद में जब सुबह हुई तो मेरे आका ने सहाबा को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो सुनो, ओ सहाबिया सुनो सुनो, अल्लाह ने आज मुझ पर वही नाजिल फरमाई है, अल्लाह ने आज मुझ पर वही नाजिल फरमाई है। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, वो कौन सी वही है, वो कौन सी वही है? मेरे आका ने पढ़ पढ़ के सुनाना शुरू किया। मेरे आका ने जब पढ़ पढ़ के सुनाना शुरू किया तो वही शख्स जिसने कहा था वो मोहम्मद मजनू की तरीके से शक्ल अच्छी नहीं लगती माज़अल्लाह, उसी के 10 ऐब अल्लाह ने बयान किए, 10 ऐब अल्लाह ने बयान किए। और जब 10 ऐब अल्लाह ने बयान किए तो उसको मेरे आका ने बयान किया सहाबा के सामने। जब सहाबा ने सुना तो देखा कि वलीद इब्ने मुगीरा जा रहा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रोक लिया, और जब रोकने के बाद में उसके ऐब बयान करने लगे तो उसने 9 ऐब तस्लीम किए। हाँ, मेरे अंदर पाए जाते हैं चोरी मक्कारी, यानी इसी तरीके से ऐब थे, तो 9 ऐब उसने अपने तस्लीम किए। लेकिन एक ऐब जब उसके अंदर आया, वो कौन सा ऐब था? वो ऐब ये था कि उसको हरामी करार दिया गया, उसको हरामी करार दिया गया। सूरह कलम आज भी बोल रही है, अगर कोई सबूत मांगे तो सुबह चले आना, कहीं दूर नहीं हूँ, आपके पास ही मैं जुनैदपुरा के अंदर रहता हूँ, चले आना, कुरान पाक का सबूत दिखा दूंगा। कुरान पाक खुद कह रही है, कुरान पाक बता रही है, जब उसके सामने रसूल आयत बयान किया गया तो उसने तस्लीम तो किया, लेकिन उनके सामने बोला नहीं, आंखें लाल हो गई, गुस्से से थरथराने लगा और अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ से तलवार खींची और माँ को एक पैर मारा, माँ जमीन पर गिर गई, सीने पर बैठ गया और बैठने के बाद में कहा, माँ बताया मोहम्मद और उसके साथी कहते हैं कि मैं महारानी की औलाद हूँ, क्या ये सच है? अल्लाह अल्लाह। जब उसने इतना कहा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर तू हरामी ना होता तो अपनी माँ के सीने पर सवार ना होता। कहा, बेटा अगर तू हरामी ना होता तो अपने माँ के सीने पर सवार ना होता। कहा, इसके पीछे राज क्या है? कहा, बेटा तेरा बाप बहुत दौलत वाला था, बेटा तेरा बाप बहुत दौलत वाला था, लेकिन क्या करती, वो इस लायक नहीं था कि औलादे पैदा कर सके। मैं एक बार जंगल से गुजर रही थी, मैंने चरवाहे को देखा, मैंने सोचा दौलत इतनी है जाए हो जाए कि दूसरे ले लेंगे, दूसरे कब्जा कर लेंगे। मैंने सोचा मौका अच्छा है, मौका अच्छा है, मैंने उसके साथ मुकाबला किया और उसी का नतीजा तू है। अब समझ लेना, जो सबूत मांग ले, जो सबूत मांग ले तो उसकी माँ ने कहीं ना कहीं नहीं ढूंढाए हैं, तभी वो सबूत मांग रहा है। मेरे मुस्तफा के बारे में या वलियों के बारे में या उलमा के बारे में
कोई अगर मांग ले सबूत तो समझ लेना, क्योंकि उलमा भी नबी के इल्म के वारिस, उलमा नबी के इल्म के वारिस और नायब रसूल, समझ लेना। अब ये कहोगे खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो आओ और सबूत दे दूं, और सबूत दे दूं। ये तो नबी का दौर था, सहाबा का दौर था, आपके सामने मैंने इनको बताया इनकी हकीकत क्या है। अब आओ आपको ले चलता हूँ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला, इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला, उनकी बारगाह में एक शख्स आया, एक शीशी लिए हुए था, शीशी लिए हुए था। जरा देखना सलाम किन किन लोगों ने, सलाम किन किन लोगों ने पढ़ा। ये लोग कहते हैं आला हजरत वाले सलाम पढ़ रहे हैं, अरे आला हजरत वालों ने ही नहीं, इमाम जाफर वालों ने भी पढ़ा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वालों ने भी पढ़ा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी पढ़ा है, सिद्दीक़ अकबर ने भी पढ़ा है, उमर फारूक ने भी पढ़ा है, उस्मान गनी ने भी पढ़ा है, मौला अली ने भी पढ़ा है, इमाम हुसैन ने भी पढ़ा है, हज़रत अमीर मुआविया ने भी पढ़ा है, तमाम सहाबा ने पढ़ा है, तमाम इमामों ने पढ़ा है, तमाम ताबई ने पढ़ा है, तमाम तबे ताबई ने पढ़ा है। अब इससे पता चलता है जितने असलाफ के लोग गुजरे, अच्छे लोग गुजरे, वो किसी और जमात से नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात से थे, और सबके सब हमारे हैं, और तुम्हारा कौन बचा है। अरे कल मैदान में महशर में हम दामन को पकड़ लेंगे और कहेंगे मौला तूने कहा था अच्छों के साथ हो जा, हम अच्छों के साथ हो गए, अभी मेरा हश्र इन्हीं अच्छों के साथ कर। तो याद रखना यहाँ सिद्दीक़ अकबर का हश्र होगा, यहाँ फारूक आज़म का हश्र होगा, यहाँ तमाम सहाबा का हश्र होगा, ताबई का हश्र होगा, तबे ताबई का हश्र होगा, और इन उलमाए किराम उलमाए अहले सुन्नत का हश्र होगा, वही हम गुनहगारों का भी है। और जब इनसे पूछा जाएगा ना तब ये वही बताएंगे ना कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह नबी को तो इनमें गैब ही नहीं मालूम, जिंदा घोड़े गधे को मालूम, तो इनका हश्र किसके साथ होगा? घोड़े गधे के साथ होगा ना। तो घोड़े गधे की तारीफ तो तुम कर रहे हो और नबी की तारीफ करने में नानी मर रही है, नबी की तारीफ करने में नानी मर रही है। कहते हैं एक बदअकीदा मरा, देखना जानवर भी जानते हैं, जानवर भी जानते हैं गुस्ताखे रसूल की क्या सजा है। एक बदअकीदा मरा, बच्चे सुन्नी थे, बच्चों ने देखा मर गया, कहा इसको कफन दफन करेंगे ना तो शरीयत से हम भी बाहर हो जाएंगे, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। कहा दरवाजा बंद करो, घर छोड़ दो, चलो। मर गया, आंगन में पड़ा था, दरवाजा बंद हुआ, बच्चे चले गए। एक कौवा आया, आने के बाद उसने देखा कि एक बदअकीदा मरा पड़ा है जो नबी को हमेशा अपना बड़ा भाई और भूत शैतान की तरह दिखता था। कौवा गया, अपनी पूरी जमात को बुला के लाया, पूरी जमात चली आई। कहा किस लिए बुला के लाए? कहा ये देखो मरा पड़ा है। अरे मरा पड़ा है तो हमसे क्या हुआ? कह रहे ये वही था जो जिंदा में कहता था कौवा हलाल है, आज ये मर गया है, आज इसको हलाल कर, आज ये मर गया है, इसकी औकात से बता दो। तो याद रखना हमारा हश्र ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज जब हम मरते हैं ना तब भी मेरे आका ने इतनी फजीलत फरमाई है ना मोमिन मुर्दों के ऊपर कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन के जनाजे को कांधा लगाता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके कबीरा गुनाह माफ फरमाता है, कबीरा गुनाह माफ फरमाता है। सगीरा नहीं, सगीरा छोटा हो गया, कबीरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात हाफिज़ कारी सैयद अख्तर साहब आपके सामने तशरीफ फरमा है। आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए, क्योंकि मोमिनों की ज़ियारत करना भी बहुत बड़ा सवाब है, मोमिनों की ज़ियारत भी करना बहुत बड़ा सवाब है। और हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान है,
हदीस पाक में आता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब हाफिज़ कुरान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मैंने कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान को याद किया और अमल किया, अब मेरे लिए क्या जज़ा है? तो रब फरमाएगा, चल पढ़ कुरान, जहां तक पढ़ता चले जाएगा जन्नत तेरे नाम वहां तक लिख दी जाएगी, जन्नत वहां तक तेरे नाम लिख दी जाएगी। ये निकम मर्तबा ये 100,000 ज़ियारत करते रहिए और तकलीफ को समाप्त फरमाते रहिए। तो मैं बता रहा था, यानी कि जो मोमिन मरता है ना, अहले सुन्नत ही के अंदर मोमिन होते हैं, इनके में कहाँ मोमिन होते हैं? मोमिन होते ही नहीं। ऐसे काले काले कारतूस किए हैं ना कि शर्म से मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलती होगी कब्र में। इनसे जब हमसे पूछा जाएगा ना फिर शानी हक की हाजिर रोजी, तो वहां हम सीधा यही जवाब देंगे ना कि अपने माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, बीबी से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, हर कुछ से बढ़कर के हम अपने नबी को चाहते थे, जिसके बारे में आज तुम पूछ रहे हो ना, उस नबी को चाहते थे। तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जब इनसे पूछा जाएगा तो ये यही कहेंगे ना, ये कौन है? इन्होंने लिखा किताब में कि जो नबी अपनी बेटी फातिमा की शफाअत ना करा सके वो तुम्हारी कैसे कराएगा? तो ये वही वहां पर कहते जो दुनिया के अंदर इंसान बोलेगा उसका अकीदा जो बोलेगा वही कब्र में बोलेगा, वही कब्र में बोलेगा। तो ये कब्र में भी वही बोलेंगे। और जब कब्र में बोलेंगे ना तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कब्र का अजाब कैसा है। कभी वक्त मिला आपके दयार में रहता हूँ तो कब्र के अजाब पर और सारी चीजों पर जरूर आपको सुनाऊंगा। तो इनका तो हश फरिश्ते फिर शुरू कर देंगे क्या करना है इनके साथ में। तो मैं बता रहा था, इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारगाह में एक शख्स आया और उस शख्स के पास 3 मुँह मुबारक थे, 3 मुँह मुबारक थे। कहने लगा, ए इमाम बाक़िर, लोग कहते हैं कि ये नबी के मुँह मुबारक है, इसकी क्या सनद है? इसकी क्या सनद है? कितना सलाम किन किन लोगों ने पढ़ा है? कहता है इसकी क्या सनद है? इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में उनके तमाम मुरीदीन मौजूद थे। आप खड़े हो गए, तमाम मुरीद भी खड़े हो गए, और जब तमाम मुरीद खड़े हुए तो आप सलाम पढ़ने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जब वज्द के आलम में आए ना, जब झूमने लगे नबी पर सलाम पढ़ते पढ़ते, जब झूमने लगे तो नबी 3 बालों के अंदर, 3 मुँह मुबारक के अंदर 2 मुँह मुबारक खड़े होकर वो भी झूमने लगे, एक नहीं झूम रहा है। इमाम बाक़िर ने देखा 2 मुँह मुबारक झूम रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। जब आपने देखा, देखने के बाद में जब सलाम खत्म हुआ, सलाम खत्म होने के बाद में आपने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मुँह मुबारक लेकर के आया था ना, उसमें 2 नबी के मुँह मुबारक है और एक वो नबी का नहीं है मुँह मुबारक। यानी पता चला कि हम जब यहाँ से सलाम पढ़ते हैं तो नबी अपनी कब्र के अंदर जरूर समाअत फरमाते हैं। अरे जिसका मुँह मुबारक सुन ले सलाम झूमने लगे, फिर मेरा नबी कैसे नहीं समाअत फरमाता होगा? मेरा नबी भी समाअत फरमाता है। और यहाँ से सबूत मिल गया, यहाँ से पता चल गया कि यहाँ से ये पता चला कि इमाम बाक़िर ने भी पढ़ा है सलाम।